عدیل کی وفات کو 2 دن گزر گئے تھے مگر گھر کا ہنگامہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ افشین زمل کو ایک پل بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور آج جب صبح اس نے پھر سے اسے ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا جبکہ وہ پریشے اور آیت کے ساتھ ہی تھی، مگر پھر بھی اس کا خون کھول گیا۔ میرے بیٹے کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی ہو تم دونوں، میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں۔ آیت اور پریشے پر وہ ایک دم چڑھ دوڑی جنہوں نے زمل کی وجہ سے لیٹ ناشتے کا پروگرام بنایا تھا۔ آیت نے تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا کہ وہ افشین کے تیور دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، جبکہ پریشے نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ بس کریں چچی، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جب کھانے بیٹھتی ہے آپ آ جاتی ہیں۔ پریشے بولی تو افشین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم اس کے لیے مجھ سے بد کلامی کرو گی؟ اس کے لیے؟ اچانک ہی خاموش بیٹھی زمل کو انہوں نے تھپڑ مار دیا، جبکہ وہ تو حیران کن لڑکی تھی، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں ادا کر رہی تھی۔ افشین، یہ کیا حرکت ہے؟ بھابھی اس کو باہر نکالیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ افشین چلائی جبکہ سب خاموش سے رہ گئے۔ زمل نے لقمہ یوں ہی چھوڑ دیا اور اٹھی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ پریشے نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تنزیلہ، اپنی بیٹی کو لگام ڈالو، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ یہ جاہل بھوکے فقیر لوگوں کی حمایت کرنا بند کر دے۔ اس لڑکی کا تعلق میرے بیٹے سے تھا، اسے تو اس نے مار دیا، اب کیا سمجھ رہی ہے کہ ہم سب کی ہمدردیاں اکٹھی کر کے یہاں سے پیسے بٹورے گی؟ میں تو اس کے عزائم سمیت اسے آگ لگا دوں گی۔ وہ غصے سے چلائیں۔ تنزیلہ نے پریشے کو گھورا جو کہ ماں کی اس حرکت پر اور بھی تپ گئی۔ نکلو اس گھر سے۔ افشین پھر سے زمل کو دھکا مار کر بولی تھی، جس کے وجود میں ہمت جیسے نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس گھر میں سکون ملے گا یا نہیں؟ اچانک ان سب کو پیچھے سے کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی، اور سیڑھیوں میں نائٹ ڈریس میں بے ترتیب سا وہ مندی مندی آنکھوں سے اور الجھے بکھرے بالوں اور بے پناہ لاپرواہ وجاہت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نیند کے برباد ہونے پر وہ دھاڑا تھا۔ سب نے ہی اس کو دیکھا۔ زمل نے بھی ایک پل کو مڑ کر دیکھا، اور اس کی سرخ نظریں دیکھنی تھی کہ سالار کی مندی مندی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ افشین نے اسے نوٹس نہیں کیا۔ چل نکل یہاں سے، اب یہاں کھڑی ہو کر اس کی بھی حمایت وصول کرے گی کیا؟ افشین نیچے لہجے میں زمل کے کان میں گھرائی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ سالار اس معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ اب زمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی کہ سالار نے آدھی سیڑھیوں سے ہی جمپ لگا دی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ پیچھے سے بولا، مگر زمل نہیں رکی، جبکہ افشین نے مسکرا کر طنزیہ سالار کی جانب دیکھا، اور گویا اس کو آگ ہی لگ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے بد لحاظی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا، یا پھر وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی تھی، بلکہ عدیل کی زندگی میں زمل کے آنے کے بعد سے اس طرح ہو رہا تھا۔ سالار غصے سے زمل تک پہنچتا کہ مدیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جاؤ، مت جاؤ، افشین مزید خفا ہوگی، اور اچھا ہے وہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، مدیحہ مدھم آواز میں بولی۔ زمل وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ سالار حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ صرف چچی کی فضول ضد کی وجہ سے آپ اس لڑکی کو اس گھر سے نکال رہے ہیں؟ وہ سرخ چہرہ لیے بولا تھا غصے سے۔ سالار، اسے آزاد رہنا چاہیے، افشین اسے یہاں سکون سے نہیں رہنے دے گی، مدیحہ بولی، جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سب وہاں سے کھڑے اسے اس گھر سے جاتے دیکھتے رہے۔ کچھ کھانے کو دیتی چچی آپ اسے؟ کچھ کھانے تو دیتی آپ اسے چچی؟ پریشے کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، بیچ میں ہی بول پڑی، تم تو چپ کی رہو، یہاں کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اور اپنے بیٹے کی موت پر اس ڈائن کو کھلاتی پھروں میں؟ افشین نے فوراً جھاڑا تھا اسے۔ سالار کے وجود میں اور بھی بے چینی سی بھر گئی۔ مدیحہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ افشین سے بدتمیزی کرے، جبکہ سالار کو دیکھ کر افشین کے لبوں پر مسکان آئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ زمل وہاں سے جا چکی تھی۔ مدیحہ نے سالار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ چینج کر لو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں کھانا، نہیں ہے بھوک مجھے، نہیں ہے مجھے بھوک، اکھڑے لہجے میں بولتا وہ واپس پلٹ گیا۔ سالار، مدیحہ کو عجیب سا خدشہ ہو رہا تھا، تبھی اس نے اس کو روکا۔ سالار رک گیا مگر مڑا نہیں۔ میں یہ وعدہ سمجھوں کہ تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ مدیحہ کا سنجیدہ چہرہ ایک دم پلٹ کر اس نے دیکھا، اور چند لمحے ماں کو دیکھتا رہا، اور پھر بنا کچھ کہے اوپر چلا گیا، جبکہ مدیحہ کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ ہفتہ گزر گیا تھا مگر دوبارہ وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کبیر مرتضیٰ کون ہے، کیا کرتا ہے اور کیسا دکھتا ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ وہ بہت امیر ہے، اور جس شخص نے اس کی محبت کی تذلیل کر دی تھی اس سے کہیں زیادہ اونچا سٹیٹس رکھتا ہے۔ مگر ان لوگوں کا دوبارہ نہ آنا اس کو مذاق بنا گیا تھا۔
अब्बू कुछ बोलते नहीं थे, जबकि अम्मी के तानों ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ फुफ्फो भी भाई से मिलने के लिए उस पर सारी बात डाल गई और उनका बेटा भी अपनी हरकत छुपा गया था। गोया वो अपनों से ही तंग होकर रह गई थी। अजीब सा मजाक बन गया था उसका। वो कमज़ोर नहीं थी मगर हो रही थी। रात की तारीकी में अकेली छत पर बैठी वो इसी मुतालिक सोच रही थी कि पीछे आहट का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, जैसे बरसों बाद उसको देखा था। वो चंद पल देखती रह गई। उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। नैन ने फौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग नहीं आए? मुझे लगता है नकली जाली लोग थे, चूना लगा गए तुम्हें। वो कहका लगा कर हंसा, जबकि नैन के गले में आंसुओं का फंदा लग गया, मगर वो बोली कुछ नहीं, ना ही अपने उमड़ने वाले आंसू उसे दिखाए। बिला वजह तुम मेरा मुकाबला करने चल निकली हो नैन। उसने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि नैन ने फौरन हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे। ना चाहते हुए भी गालों पर आंसू लुढ़क गए। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। वो फिर हंसने लगा। तुम लड़कियों का भी अजीब है, जिद पर आकर मुकाबला तो करने चल पड़ती हो मर्द से, फिर मुंह की खाकर रोने लगती हो। उसने सर झटका। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली। मेरा एक जानने वाला है, तुम्हारे साथ सूट करेगा। मुझ जितना अमीर तो नहीं है मगर तुम लोगों से बेहतर ही है। कहो तो बात चलाऊं उधर? वो कमीनगी से बोला। नैन को लगा वो अभी जमीन में धंस जाएगी। आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखने लगी। ये वही लब थे जो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वही चेहरा था जिसकी मुस्कुराहट में उसको देखकर दो गुना इजाफा हो जाता था। और पैसे ने हर चेहरे पर से नकाब उतार दिया था। क्या वो किसी पर यकीन करने के काबिल थी? बेबसी से वो सिसक सी गई, जबकि मुकाबिल का चेहरा मुस्कान नहीं छुपा सका। रो मत। जिस तेजी से तुम रिश्तों को हाँ कर रही हो, जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। मगर अफसोस, वाकई तुम्हें तुम्हारे मयार जितना शख्स ही मिलेगा। उसको रोता देख वो बोला था, चले जाओ यहाँ से। नैन ने हिम्मत करके आंसू साफ किए। अरे चला जाता हूँ। वो हंसते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। अरे चला जाता हूँ। वो हंसते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। चेहरे पर फतह थी। अगर उसकी वो नौकरी ना लगती जो चंद माह पहले लगी थी, जिससे वो खुद को बहुत कुछ समझने लग गया था, तो वो भी उसके जितनी हैसियत रखता था। उसका बस नहीं चला, चीखें मार मार कर रोए। इतना रोए कि अपने दिल से उस जलील इंसान की एक एक बात को निकाल फेंके। गुड इवनिंग सर। पीए की कॉल रिसीव करने पर उसने स्पीकर पर डाली और खुद तैयार होने लगा। इवनिंग, संजीदगी से बोला गया। सर, आपने जिस लड़की का कहा था, वो लड़की ईदी फाउंडेशन में रह रही है 3 दिन से। पीए के अल्फाज थे या तेजाब? उसे तेजाब की मानी लगे। उसने टाई जो बांधी थी खोलकर एक तरफ फेंक दी। उस लड़की को वहां से उठाओ और मेरे फ्लैट में पहुंचाओ। शीशे में अपने ही अक्स को घूरते हुए वो बोला। जी, जैसा आप चाहें, पीए ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जबकि सालार तैयार होकर नीचे आ गया। आज एक डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग थी। तभी वो शाम में घर से निकलने के लिए अपने पोर्शन से उतरा था। जैन के कमरे की तरफ निगाह गई तो माथे पर कई बल पड़े। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे एक लड़की का गम उसका भाई क्यों मना रहा था। बहरहाल, उससे बाद में बात करने का सोचकर वो हॉल में आ गया और आरिज और कबीर अभी अभी लौट कर घर आए थे, जबकि मुर्तज़ा, शहाब, सिकंदर और वजाहत भी वहाँ मौजूद थे। कहाँ जा रहे हो? वो जानता था मुर्तज़ा साहब सवाल ज़रूर करेंगे। डायरेक्टर से मीटिंग है। उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये मरासियों वाला शौक किस दिन पूरा होगा तुम्हारा? वो ज़रा सख्ती से बोले। सालार ने कबीर की तरफ देखा जैसे जब की इंतहा पर हो। गोया वह भी उठाकर पटक देगा। बाबा क्या हो गया? प्रोफेशन है उसका। कबीर ने उसकी शक्ल देखकर फौरन लुकमा दिया। हाँ तो समझाओ इसे। बिजनेस की तरफ आए। ये क्या चोंचले हैं? इसके रिश्ते को जाएंगे तो क्या ये बताएंगे कि बेटा नाश्ता गाता है? वो बोले, जबकि आरिज अपनी हंसी दबाकर मुंह मोड़ गया। सालार का चेहरा सुर्ख था जैसे अभी वो फट पड़ेगा, मगर अपनी आदत के बरखिलाफ वो यूं ही खड़ा रहा। कबीर ने गहरा सांस लिया। मेरे रिश्ते के लिए आपको हलकान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो पसंद आएगी मैं शादी कर लूँगा, उसने सर्द मोहरी से कहा और सबको हवनक छोड़कर मजबूत कदम उठाता वहां से चला गया, जबकि पीछे सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे। अब कबीर भी अपनी जगह से उठ गया, जबकि आरिज ने अपनी खिंचाई से पहले ही उठ जाना मुनासिब समझा। उस दिन के बाद बाबा तो उससे बात ही नहीं कर रहे थे और कबीर भी सिर्फ काम की हद तक। डायरेक्टर से मीटिंग करके न जाने क्यों उसका ड्रिंक का मूड हो गया। वो अपने फ्लैट में आ गया, जबकि वो ये भूल ही गया था कि जज्बात में आकर वो पीए को क्या कह चुका है। बाबा की बातों पर ही उसका खून खोल रहा था। जदीद तर्ज का बना ये फ्लैट बेहद खूबसूरत था। तकरीबन पूरा घर ही कांच का बना हुआ था।
रूम्स 2 थे और दोनों ही ट्रांसपेरेंट से लगे शीशे की दीवारों की वजह से अंदर का बाहर वालों को सब नजर आता था, जबकि किचन तो ओपन ही था। वो लाउंज में बैठा अभी बोतल खोल ही रहा था कि क्लिक की आवाज़ से फ्लैट का दरवाज़ा खुला और पिए एक लड़की को अंदर ज़बरदस्ती घसीट लाया। सालार खामोशी से ये मंजर देख रहा था, ना वो हैरान हुआ और ना ही परेशान। उसने ग्लास में ड्रिंक डाली और उस लड़की को देखने लगा जिसकी आंखों पर पट्टी थी और वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। गुड इवनिंग सर, पीए ने आते ही सालार को देखकर कहा, जिसने सर हिलाया जवाबन। जाओ तुम, उसने बस इतना ही कहा। जिमल आवाज़ पर चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगी, जबकि आंखों पर स्याह पट्टी थी। सालार उसकी पहचान पर मुस्कुरा दिया और उठ खड़ा हुआ। 8 कदम चलकर वो उसके मुकाबिल पहुंच चुका था। नरमी से उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। जिमल उस खूबरू मर्द को अपने सामने देख रही थी जिसके हाथ में शराब का ग्लास था और वो चेहरे पर मध्यम मुस्कान लिए खड़ा था। अचानक उसके वजूद में खौफ के साथ साथ नफरत सी दौड़ी और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, मगर बेइख्तियारी में जिमल से ये अमल हुआ। उसका हाथ उठा और सालार के गाल पर खींचकर उसने थप्पड़ लगाया। सालार इस उस्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और ना ही वो कुछ ऐसा सोच रहा था। वो जिमल को एक दब्बू सी लड़की समझ रहा था जिसको लेकर उसके दिल में कोई ख़ास किस्म के जज्बात नहीं थे। हाँ, मगर उसे अपने घर वालों का रवैया उसके साथ समझ नहीं आया था और फिर उसका अपना घर जाने की बजाय ईदी फाउंडेशन चले जाना सालार को काफ़ी गुस्से में मुब्तला कर गया था और उसका इरादा भी इस हद तक था कि इस लड़की को इस फ्लैट में रहने की इजाज़त दे देगा, मगर खेल ही सारा पलट गया था। दूसरी तरफ जिमल इस तरह उठाने और उसके फ्लैट में यूं लाए जाने और फिर उसके हाथ में शराब का ग्लास और अकेले घर में उसके साथ तन्हाई देखकर सारे मतलब गलत अखज़ करती गई, जिसकी वजह से उसका हाथ उठ गया था। आपका भाई भले ही पागल था, मगर मैं उसकी बेवा हूँ। इद्दत भी ख़त्म नहीं हुई अभी मेरी और आपने इतनी नीच हरकत की। मुझे यहाँ उठवा कर लाने का आपका क्या मकसद था? आप क्या समझ रहे हैं? अगर मेरे वाली वारिस नहीं है कोई तो आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे? लानत भेजती हूँ मैं आप पर और आपकी इस सोच पर। जिमल गुस्से से तिलमिला उठी, जबकि सालार के हाथ की गिरफ्त शराब के ग्लास पर इतनी सख्त होती गई कि उस खामोश फ्लैट में छन्नाके की आवाज़ के साथ ग्लास उसके हाथ में ही फट गया, जिसकी वजह से एक कांच का बड़ा टुकड़ा उसकी हथेली में चुभ गया। जिमल ये मंजर देखकर एकदम चिल्ला उठी। सालार ने सुर्ख नज़रों से उसकी जानिब देखा। हाथ में क्या हुआ था वो अपने अंधे गुस्से में बिल्कुल नहीं देख सका था। उसने जिमल की तरफ जिन नज़रों से देखा, जिमल अपनी गुज़िश्ता हिम्मत पर कांप सी गई। थप्पड़ क्यों मारा तुमने? सर ठंडे और बेलचक बेरहम लहजे में उसने सवाल किया था। आपका हाथ? जिमल की आंखों में आंसू आए, जबकि सालार ने उसके पास से अपने हाथ को दूर कर लिया और हथेली में कांच देखकर उसने एक झटके से कांच को हथेली से निकाला और दूर फेंककर उसी खून आलूद हाथ से जिमल का चेहरा जकड़ लिया। तेजी से खून बहता रहा, जिमल के चेहरे पर भी लग गया। मैं पूछ रहा हूँ कि थप्पड़ क्यों मारा? वो फिर धाड़ा था। गोया थप्पड़ तो जोर से नहीं लगा था, मगर उसकी अना के बुलंद मयार पर बड़ी जोर से लगा था। मुझ बकवास बंद करो, सिर्फ इतना बताओ जितना पूछा है, तुमने थप्पड़ कैसे मारा मुझे? वो उसे घसीट कर दीवार से चिपका चुका था। जिमल कांप सी गई, उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। सालार ने उसको इस सख्ती से जकड़ रखा था कि जिमल के आंसू बहने लगे। वो उन आंसुओं को देखकर गुस्से से दूर हटा और जोर से मुक्का दीवार में दे मारा। सारी बातों ने इकट्ठे होकर उसके अंदर जैसे आग सी जला दी थी। जिमल एक बार फिर कांप सी गई। वो हैरान नजरों से उसके अमल को देख रही थी जो जैसे बेचैन हो गया था, बार बार उसी हाथ पर हिट कर रहा था। जिमल की हैरान नजरें उस पर थीं। गालों में चुभी उसकी उंगलियों का दुख नहीं, दर्द नहीं था। अफशीन और दिल से वो इतना पिटी थी कि अब उसे तकलीफ नहीं होती थी, मगर सामने वाले की अना पर एक थप्पड़ कितनी जोर से लगा था कि वो पागल सा हो रहा था। निकलो यहाँ से। अचानक उसने जिमल की तरफ देखा। जिमल जो बहुत गौर से उसे देख रही थी बौखला गई। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। वो फिर से धाड़ा। आपका हाथ? जिमल रोने लगी, जबकि सालार का दिमाग उसके रोने पर और भी खराब हो रहा था। इससे पहले कि वो उठता, जिमल डर कर दरवाजे की जानिब भागी। सालार उसे नजरों से ही मार देना चाहता था। उसने दरवाजा खोला और बार बार उसके हाथ से बहते खून पर निगाह जा रही थी, और जब उसके तासुरात में कमी नहीं आई तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। बाहर वही आदमी खड़ा था जो उसे जबरदस्ती यहाँ लाया था। उसने गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखा। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? पीए उसके पीछे पीछे आया था। तुमसे मतलब? जिमल तड़क कर बोली। आप नहीं जा सकती। पीए ने नफी की। तुम्हारे सर ने ही मुझे दफा होने का कहा है।
जिमल को रोना भी आ रहा था, साथ के साथ गुस्सा भी। समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी ज़िंदगी है जो हर कुछ दिन बाद एक नया इम्तहान लेने खड़ी हो जाती है। मैडम, जब तक सर मुझे ऑर्डर नहीं देंगे आप कहीं नहीं जा सकती। आप कुछ देर यहाँ वेट करें, अभी सर यहाँ से चले जाएंगे और सर ने ही मुझे ये ऑर्डर दिया था कि आपको यहाँ पर लेकर आऊँ। आप ईदी फाउंडेशन में नहीं रहेंगी। पीए ने तफसील से बताया। तुम्हें या तुम्हारे सर को मेरे कहीं रहने या ना रहने से कोई फ़र्क? उसकी ज़ुबान ततला गई। पीए ने बहस की बजाय गन निकालकर उसकी पेशानी पर रख दी। जिमल लरज़ सी गई। प्लीज़ मैडम, खामोश रहें आप। वो बस इतना बोला और इधर उधर देखने लगा। जिमल में अगला लफ्ज़ बोलने की जुर्रत नहीं हुई। तकरीबन आधे घंटे बाद धाड़ से दरवाज़ा खुला और वो उन दोनों के सामने बिगड़े तासुरात लिए वहाँ से गुजर कर चला गया। पीए खून में लथपथ उसका हाथ देखकर बौखलाया। मैडम आप अंदर जाएं। मैं नहीं जाऊंगी, जाने दो मुझे। जिमल ने मज़ाहमत की मगर वो उसे ज़बरदस्ती अंदर धकेल कर बाहर से लॉक करके सालार के पीछे दौड़ा था। अदील की मौत को आज महीना गुजरने को आया था मगर अफशीन वैसे ही थी, बेटे को याद करके और जिमल को कोसने देती रहती। सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे मगर उसका गम हल्का हो। उसने रिमशा को भी उसकी नानी के घर भेज दिया था। सब ने उसे रोका भी कि दूसरी औलाद साथ रहेगी तो गम हल्का होगा मगर उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। और यूं एक महीना गुजर गया। सालार उस दिन घर आया तो उसके पीए ने उसकी ड्रेसिंग करा दी थी। उसकी चोट के बारे में सब ने पूछा मगर वो छोटे से हादसे का कहकर टाल गया और उस दिन के बाद वो दोबारा फ्लैट नहीं गया या शायद उसे याद नहीं रहा। संडे था, सबकी छुट्टी थी, तभी सब लोग शाम में जमा थे, शाम की चाय पर, और सब बातें कर रहे थे। अफीन के पास सिर्फ अदील का मौजू था जिसे सब सुनते कि उसका दिल हल्का हो जाए। जबकि अचानक सालार ने बाप की तरफ देखा। काफ़ी देर से वो मोबाइल में मगन था। दूसरी तरफ आरिस को अजीब उलझन हो रही थी। एक तो उस दिन के बाद से जेनी उससे नाराज़ थी, कोई बात नहीं कर रही थी। मिजाज में भी एक हफ्ते में अजीब सा बदलाव आया था उसके। ना वो उस बात से घबरा रही थी कि उसके खदोखाल में तब्दीली वाज़ेह होने लगी है जिसके बाइस उसकी खूबसूरती में दुगना इजाफा हो चुका था। और सबसे अहम बात, वो लड़की जो आरिस से निगाह नहीं हटा पाती थी, पिछले 1 माह से वो आरिस की तरफ देख भी नहीं रही थी और ये बात आरिस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुछ देर बाद आयत पर निगाह डालता जो कि अब सालार की तरफ मुतवज्जो थी। जैन खामोश बैठा था जबकि वो भी कुछ तवक्कुफ के बाद अमल को देखता जो उसकी शक्ल देखने की बिल्कुल रवादार ना थी। जबकि सालार पूरे सोफे पर बैठा कम लेटा ज़्यादा हुआ था और कबीर भी खामोशी से कॉफ़ी पी रहा था। सालार के पुकारने पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। आपने कबीर की शादी के बारे में अब क्या सोचा है? वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया। अगर किसी को खुदकुशी का शौक़ है तो वो सालार है। ये बात आज उसने देख ली थी। वो हर बार ऐसी बात कर जाता था कि सामने वाला उसको डंडा उठाकर मारे और हस्बे मौका अफीन चीख पड़ी, मेरे बेटे को मरे 1 महीना नहीं गुजरा और इस घर में शादियाँ ने बजेंगे। अफशीन तिल मिलाई। मुर्तज़ा ने सालार को घूरा। महीना तो खैर गुजर चुका है चची, और कितना सोग मनाने का इरादा है आपका? सब ने गहरा सांस भरा। अब लाहासिल बहस शुरू हो चुकी थी। सालार, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मदीहा खुद ही बोल उठी, क्यों भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़की जिसके घर रिश्ता लेकर गई थी वो तो ये बात जानती भी नहीं कि हुआ क्या। वो क्या आपके बेटे का सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहेगी? और खैर से आपका बेटा भी बड़ा ही अक्लमंद है। दूसरी बात नीची आवाज़ में बोला, जबकि उसकी बात पर कबीर ऐसे चौंका जैसे अब होश में आया हो। उसे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो तो जानती भी नहीं अदील की डेथ के बारे में। क्या क्या सोच रही होगी वो अब उसके बारे में। उसने बेचैनी से कप टेबल पर रखा। सालार मुस्कुरा दिया कि कबीर साहब होश में आ गए हैं। उसने माँ की तरफ देखा। ममा, आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो संजीदगी से बोला, बेटा मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मदीहा शर्मिंदा सी हुई। चाचू आप मुझे बताएं, क्या अब माहौल बदलना नहीं चाहिए? और मैं तो चची के ख्याल से ये बात कर रहा हूँ, इस तरह उनका भी ज़रा जहन बढ़ जाएगा। खैर, मैंने अदील को भूलने का नहीं कहा। वो अपनी एक्टिंग के जौहर उस वक्त आजमा रहा था जिसका अंदाज़ा उसके तीनों भाइयों और बाप को था। बाकी सब खामोशी से सुन रहे थे। ठीक कह रहा है भाईजान सालार, हर बात भी गलत नहीं होती बच्चों की। सिकंदर साहब बोले तो सालार का दिल किया खुद को थपकी दे। वो वाकई एक अच्छा एक्टर था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अफशीन भड़की थी। चुप की रहो, सिकंदर साहब ने कहा तो वो बोलती हुई वहाँ से उठकर चली गई। ऐसे अच्छा नहीं लगता सिकंदर, मुर्तज़ा साहब ने भी नफ़ी की। बाबा क्या हो गया यार, माहौल बदलेगा तो सब ठीक, तुम तो बकवास बंद करो अपनी। वो उसे झिड़क गए।
अक्लमंद लोगों की तो इस घर को ज़रूरत ही नहीं। क्यों ज़ैन? सालार ने उसकी तरफ देखा जो एकदम चौंका और मुस्कुरा दिया। सालार उसकी तरफ देखता रहा और फिर बाप को देखने लगा। मैं भी यही कहूँगा कि माहौल को बदला जाए। शहाब बोले तो सालार के साथ ही हो गए सब। आरिस तो खुद से बोला नहीं कि बीच में घिसटा जाएगा। कबीर भी खामोश था। अलबत्ता सालार ने पूरा पूरा साथ भाईचारा निभाया था उसके। ठीक है, मगर हम अब उस लड़की के हक में नहीं हैं। मुर्तज़ा साहब ने बात फिर वहीं से शुरू की। बाबा वो मेरी पसंद है, अब कबीर बोला, जबकि सालार और आरिज मुस्कुरा रहे थे। दोनों जानते थे वो मना लेगा। जैन अलबत्ता दिमागी तौर पर वहाँ मौजूद था ही नहीं। कल रात जो फ़ोन कॉल आई थी उसने उसके धक्कड़ पकड़ लगा दी थी। और मेरी पसंद ऐमन में है, मुर्तज़ा बोले। शादी मैंने करनी है बाबा, कबीर ज़रा गुस्से में बोला। मुर्तज़ा साहब माफ़ी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। वो मेरी बहन की बेटी है और मैं उसे कबीर की पसंद के बारे में बता चुकी हूँ। बेटों के साथ हो जाएं अब आप भी। मुर्तज़ा गुस्से से उठकर वहाँ से चले गए, जबकि सालार हंस दिया। मम्मा कैसे डर डर के बोलती हैं आप अपने शोहर के सामने। शट अप सालार, कबीर ने झड़का तो वो भड़क उठा। चाचू देख रहे हैं कैसा एहसान फरामोश है ये। एकदम सब हंस दिए। नानी के पास गांव में शादी करेंगे हम। बस करो, पहले हमारा बाप मेरी पसंद पर नहीं मान रहा, ऊपर से तुम्हारी बकवास जारी है। कबीर ने गुस्से से कहा। वो काम मुझ पर छोड़ दो। पता नहीं टॉप फेमस एक्टर्स में से हूँ, वो आंख मारते बोला। मगर अपने घर क्यों नहीं? आयत बोली तो सब उसको देखने लगे। वो पहली बार इस तरह बोली थी। सालार और कबीर तो मुस्कुरा दिए, जबकि जैन भी एक पल को मुस्कुराया। आरिज उसकी तरफ देखने लगा तो आयत कंफ्यूज हुई थोड़ी। आयत कंफ्यूज सी हुई थी। आयत इसी घर में चाहती है तो शादी यहीं होगी। कबीर ने फैसला सुनाया और महफिल बर्खास्त हो गई। वाह यार, जुबान लग गई। प्रीशे ने छेड़ा तो आयत मुस्कुरा दी। तुम्ही ने तो कहा था। आयत ने उसकी जानिब देखा। गुड वर्क मेरी जान। तुम देखना ये आरिस का बच्चा खुद कहेगा अब तुमसे शादी करने का। प्रीशे ने सर झटका और दोनों ऊपर आ गई। प्रीशे के रूम में अमल भी साथ ही थी। यार बड़ी मम्मा से कहते हैं नैन भाभी के पास हम भी जाएंगे। अब देखें तो कैसी हैं वो जो हमारे बड़े भैया को हिला गई। प्रीशे ने कहा तो तीनों मानकर अपने कमरे से निकली। तभी जैन अपने कमरे में जा रहा था। अमल और जैन की नज़रों का तसादुम हुआ और अमल ने फौरन निगाह फेर ली। जैन भी अपने रूम में आ गया। उसकी जान सूख रही थी जब से एहतशाम की उसके पास कॉल आई थी और उसने 1 करोड़ का मुतालबा किया था। और अगर जैन उसे नहीं देता तो वो उसकी वीडियोज़ और उसका कोठे पर जाना सब कुछ उसकी फैमिली को दिखा देगा। जैन परेशानी में कमरे के चक्कर काट रहा था। क्या वो किसी से 1 करोड़ मांगेगा तो वो उसे दे देगा? ये उसके लिए एक मोइमा था। क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हें किस लिए ज़रूरत है, या फिर अभी तुम कमाते ही क्या हो जो तुम्हें 1 करोड़ निकाल कर दे दिया जाए? वो जानता था उसे कोई भी पैसे नहीं देगा। वो जानता था उसे कोई भी पैसे नहीं देगा। मगर यहाँ इस घर में उसकी तस्वीर कोठे पर जाने वाली अगर सामने आ गई तो शायद उसे कोई जिंदा भी ना छोड़ता। वो बुरी तरह फंस गया था। ऊपर से एहतशाम, और एहतशाम उसे मजीद फंसा रहा था। एक पल को उसने सोचा कि सब कुछ सालार को बता दे, सारा वजन उतार दे खुद पर से। मगर वो जानता था कबीर गुस्सा करता है तो जान मुश्किल में आ जाती है, लेकिन जब सालार गुस्सा करता है तो वो पागल हो जाता है, शायद जान ही निकाल दे उसकी। और आरिज, वो शायद उसका गला दबा दे, या कबीर या बाबा में से किसी को बता दे। उसने गहरी सांस खींचकर सेल्फ पावर ऑफ कर दिया और लेटकर वो गुज़िश्ता दिनों के बारे में सोचने लगा। क्या हो गया था वो? हरम के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ उसने नहीं किया था, मगर फिर भी वो खुद को सज़ा दे रहा था। ना ही उसने उसे मारा था और ना ही उसके साथ ज्यादती की थी। हाँ, वो शामिल ज़रूर था। हाँ, दोस्त भी उसी का था। एहतशाम, सारे दोस्तों से मिलना उसने छोड़ दिया था। सब ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। अगर घर में हादसा ना होता तो अब तक कोई भी उसे पकड़ चुका होता। मोबाइल से सिम निकाल कर उसने खुद को नॉर्मल किया। वो कब तक इस गुनाह की सज़ा खुद को देता रहेगा जो उसने किया ही नहीं? और अचानक अमल की आंखों की नफरत सामने आ गई। उसने सख्ती से मुठ्ठियां भींच ली। वो एक पल के लिए भी एहतशाम से ब्लैकमेल नहीं होना चाहता था। तभी उसने हर मामले को पसे पुश डालकर खुद को अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाने पर उकसाया। जब तक वो खुद ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। मुस्कुराकर उसने सिम ही तोड़ दी जिस पर एहतशाम कॉल करता और उठकर शावर लेने चला गया। आज उसका दोस्तों में जाने का इरादा बन गया था।